Hello everyone. So in this session we'll be discussing question 4 of paper 1 of Engineering Services Mains 2023 examination. We'll start with the discussion. Before starting there are few announcements. Flat 25% off and free month is available for all GATE, ESC, PSU 2024 and 25 batches which are starting from 30th of June. In these batches we'll be starting with structural analysis, aptitude, steel and geotech engineering. Most of the toppers of GATE and ESE are using our platform. So if you want to excel in this examination, you can join our platform also. Then if you go for Iconic subscription, all the books will be given to you, hard copy. Approximately 19 books are there, both technical, non-technical will be delivered to you within 15 days. Then no cost EMI and 0% interest on the loan is also available if you go for the subscription. Then from 19th of June, we have started a new batch in offline center also, geotechnical engineering. If you want, you can avail this single batch also or single course also. We'll start with the discussion. Problem is of RCC, earthquake. So for a vibrating system shown in the figure, determine the following parameters. Spring mass, viscous damping, mechanics में भी करा रखा है वैसे मैंने आपको. Stiffness is given, mass is given, K is given, C is given. क्या निकालना है first part? First part says what? First part बोल रहा है calculate the natural frequency. So first part says calculate the natural frequency. So natural frequency of the vibrating system. नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालनी है वाइब्रेटिंग सिस्टम की. स्क्वायर रूट ऑफ के बाय एम. तो स्क्वायर रूट ऑफ के कितना है 2400 एम है 10. सो 2400 बाय 10 यानी 240 का स्क्वायर रूट. तो 15.49 रेडियन पर सेकेंड. देन बी पार्ट में पूछा है उसने आपसे critical damping of the vibrating system. So critical damping of the vibrating system. So critical damping is how much? 2m into natural frequency. So critical damping 2 mass कितना था 10 था. Natural frequency कितनी है 15.49 है. Result comes out to be 309.8 न्यूटन सेकंड पर मीटर. फिर पूछ रहा है डैम्पिंग रेशियो. स्टैंडर्ड सवाल है, पता नहीं क्यों पूछा है इसने. सो थर्ड डैम्पिंग रेशियो. सो डैम्पिंग रेशियो कितनी होती है? डैम्पिंग रेशियो होती है C अपॉन क्रिटिकल डैम्पिंग. C दे रखी है कितनी 77 divided by 309.8 comes out to be 0.2485. डायमेंशनलेस है. चौथे पार्ट में क्या पूछा है अगले ने? डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटिंग सिस्टम. डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी. So damped natural frequency of vibrating system. So damped natural frequency of the vibrating system will be how much? Square root of 1 minus damping ratio का whole square. So natural is 15.49 square root of 1 minus 0.2485 का whole square. वैल्यू पुट करी, रिजल्ट निकल के आता है 15 रेडियंस पर सेकेंड. ये तो आपका पहला सवाल हो गया. दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम. सारा एक्सप्रेशन बेस्ड है, वैल्यूज डालनी है, हर पैरामीटर की आंसर निकाल के देना है. सो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4. चले आगे.
Next, a short braced reinforced concrete column has unsupported length of 3.5 meter and size of 300 by 360 mm. Verify the applicability of simplified formula of PU ultimate load carrying capacity of a short axially loaded column as given in the code. Also determine the design moment due to minimum eccentricity to be considered for this case if the column is subjected to the ultimate axial load of 1600 kilonewton. ठीक है, 300 बाय 360 अनसपोर्टेड लेंथ है 3.5 मीटर की. ठीक है, तो 300 बाय 360 ये दे रखा है आपको. 300 बाय 360 इसको इरेज कर सकते हैं. सो ये हमारी x एक्सिस, ये हमारी y एक्सिस, ये है 300 mm, ये है 360 mm. चलो कैलकुलेट करते हैं कि एक्सप्रेशन आपका वैलिड है या नहीं है. तो एक्स डायरेक्शन उठाते हैं, मार्क कर दिया डायग्राम में. तो नेक्स्ट डायरेक्शन minimum eccentricity E minimum is maximum of L by 500 plus जो आपकी विड्थ है x डायरेक्शन में डिवाइड बाय 30 या 20 mm. वैल्यू पुट करी, मैक्सिमम ऑफ 3.5 मीटर था तो 10 की पावर 3 डिवाइड बाय 500 x. सो बी एक्स कितनी है हमारी लंबाई चौड़ाई. सो 360 बाय 30. सो 360 बाय 30 ये आ रहा है कितना 19 mm, ये आ रही है 20 mm. तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हुई, मैक्सिमम वैल्यू हमारी निकल के आ गई 20 mm. सो हमारी जो ई मिनिमम है इसका चेक अप्लाई करना है. अब चेक अप्लाई करो कि जो ई मिनिमम है जिसकी वैल्यू 20 mm है, it should be less than 0.05 times of bx. So this is 0.05 times of 360. 360 का आधा 18, सो 18, सो 18, सो ये आ रहा है हमारा 18 mm. तो ये आ रही 20 mm. So it is not less than 18 mm. So not less than 18 mm. तो 20 mm is not less than 18 mm. ये तो चेक लग गया हमारा. So ये तो काम कर गया, इसका मतलब फेल कर गया ये x डायरेक्शन में. अब जाते हैं y डायरेक्शन में. y डायरेक्शन में चेक कर लेते हैं. सो इन y डायरेक्शन सेम E minimum is equal to maximum of L by 500. विड्थ जो है y डायरेक्शन में बाय 30 और 20 mm की जो भी मैक्सिमम वैल्यू है, तो ये है हमारी मैक्सिमम ऑफ 3.5 मीटर कन्वर्टेड टू mm डिवाइड बाय 500. 300 डिवाइड बाय 30, तो 300 डिवाइड बाय 30 वैल्यू आ गई है हमारी 17 mm एंड 20 mm. मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 20 mm. चेक अप्लाई किया, क्या चेक अप्लाई किया, ई मिनिमम जिसकी वैल्यू 20 mm है और 0.05 by से छोटी होनी चाहिए. 0.05 by है 300, ये वैल्यू निकल के आ गई 15 mm हमारी. नहीं है तो दोनों डायरेक्शन में फेल कर गया, तो आप डायरेक्टली वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते. So we can say as calculated eccentricity exceeds 0.05 times the lateral dimension. So simplified formula of PU. So simplified formula of PU cannot be applied.
सो कैन नॉट बी अप्लाइड। जो सिंप्लीफाइड फॉर्मूला है पीयू का वो आप अप्लाई नहीं कर सकते। पहला पार्ट तो ये पूछा था कि भैया सिंप्लीफाइड फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, भैया नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक है, नहीं अप्लाई कर सकते तो फिर आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट? डिजाइन मोमेंट निकालो भैया। डिजाइन मोमेंट अब पेज ऐड किया, सो हम बोलेंगे एम यू एक्स एक्स बी पार्ट। एम यू एक्स एक्स कितना होगा, पी यू इंटू एसेंट्रिसिटी इन एक्स डायरेक्शन। 16 किलो न्यूटन, 1600 किलो न्यूटन का लोड है, यही है 1600 किलो न्यूटन। 1600 किलो न्यूटन का लोड है। एसेंट्रिसिटी हम लेके चलेंगे 20 mm की, कन्वर्ट कर दिया मीटर में तो आया 32 किलो न्यूटन मीटर। देन एम यू वाई वाई पी यू इंटू ई वाई, तो 1600 इंटू 20/1000, ये वैल्यू भी कितनी आ गई, 32 किलो न्यूटन मीटर। तो दोनों जगह वैल्यू आ गई 32 किलो न्यूटन मीटर। तो सिंपल सा सवाल था, क्या पूछा था, मोमेंट ही तो पूछे थे इसमें, ये आज मोमेंट ओनली। फिर क्या था सवाल के अंदर, तो बच्चा सवाल पूछ लिया इसने। सो प्रॉब्लम वाज कंपैरेटिवली सिंपल। पिछले वाले सवाल से भी कैसा है, आसान सवाल है। इट इज इवन सिंपलर देन दैट ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम। पिछले वाले में फिर भी थोड़ा बहुत माथा मारना था, इसमें तो वो भी नहीं मारना। चले अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है बी पार्ट का पहला पार्ट। बी पार्ट का पहला पार्ट क्या बोल रहा है भाई, बी पार्ट का पहला पार्ट, बी पार्ट का पहला पार्ट बोल रहा है व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंक्रीट। अगेन डिस्कस दिस पॉइंट इन डिटेल। फिर से डिटेल में डिस्कस कर रखा है हमने इस पॉइंट, रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक है, सो रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज उठाओ। पहला पॉइंट तो हम ये मेंशन कर सकते हैं रियोलॉजी क्या होती है कंक्रीट की। देखो, रियोलॉजी इज अ साइंस ऑफ फ्लो एंड डिफॉर्मेशन ऑफ द मैटर। हमारा मैटर क्या है यहाँ पे, कंक्रीट है। इट डिस्क्राइब्स द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द फोर्स, डिफॉर्मेशन एंड टाइम। ये हमें इंटर रिलेशनशिप बता देगा किसके बीच में, फोर्स के बीच में, डिफॉर्मेशन के बीच में और टाइम के बीच में। ये जो टर्म है ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, फ्लो। रियोलॉजी इज एप्लीकेबल टू ऑल द मटेरियल्स। हमारा मटेरियल क्या है यहाँ पे, हमारा मटेरियल यहाँ पे कंक्रीट है। कंक्रीट हमारा हार्ड स्टेट में है, जो फ्रेशली मिक्स कंक्रीट है उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो उसको। The rheology of the fresh concrete is like the workability. It includes the parameter of what? Stability, mobility, and compatibility. The mechanical behavior of the hardened cement paste will exhibit both elastic and inelastic deformation. और आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो किसके टर्म में, रियोलॉजिकल टर्म्स में। अब कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट को, इसका मिक्स प्रोपोर्शन, इसकी जो कंसिस्टेंसी है, हाउ मच कंसिस्टेंस इज योर कंक्रीट, देन हार्डनिंग एंड स्टिफनिंग, देन एग्रीगेट का शेप और टेक्सचर, एग्रीगेट की ग्रेडिंग और मैक्सिमम साइज ऑफ द एग्रीगेट। ये सारे फैक्टर्स मिलके कंक्रीट की रियोलॉजी को अफेक्ट करते हैं, यानी उसके फ्लो को अफेक्ट करते हैं। इसको समझने के लिए आप एक बेसिक फंडा अप्लाई कर सकते हो, सरफेस एरिया और सीमेंट की पेस्ट। अगर हमारा सरफेस एरिया कम है, सीमेंट की पेस्ट ज्यादा है, आपको फ्लो अच्छा मिलेगा। सरफेस एरिया ज्यादा है, सीमेंट की पेस्ट कम है, फ्रिक्शन कंपैरेटिवली ज्यादा होगा, लुब्रिकेशन कंपैरेटिवली कम होगा, तो इसका मतलब फ्लो कम निकल के आएगा। यही सारे फैक्टर्स यहाँ पे मेंशन कर दिए रिलेटिंग टू अदर पैरामीटर्स, बाकी पैरामीटर्स। अगला पार्ट है सवाल का, हाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंक्रीट अफेक्टेड बाय द सी वाटर एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर इफ दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग द कंक्रीट। अगर आप सी वाटर और इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर को यूज करोगे, इससे कंक्रीट में क्या फर्क पड़ेगा। Now the effect of using the sea water, industrial wastewater in the making of the concrete on its properties are as follows. पहला, the salt content in the water will adversely affect the strength of the concrete.
जो सॉल्ट कंटेंट है उससे हमारे कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है वो एडवर्सली अफेक्ट हो जाएगी। सी वाटर जनरली कंटेन्स 3.5% ऑफ सॉल्ट, जैसे सोडियम फॉस्फेट होता है, सोडियम आर्सेनेट होता है, सोडियम आयोडेट होता है, टिन होता है, लेड होता है, जिंक होता है। जो सोडियम और पोटेशियम कार्बोनेट होते हैं, दे causes the rapid setting in large concentration which results in the reduction in the concrete strength. The salt content in the sea water will reduce the concrete strength by the amount of 10 to 20%. 10 से 20% की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये इम्पैक्ट निकल के आ गया। The high content of the chlorides in the water will tend to show the surface efflorescence. सी वाटर में आपको मिलेगा और सीवेज में भी आपको मिलेगा, जिससे करोजन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे हमारे रीइंफोर्समेंट में। Now the amount of the corrosion will depend upon the permeability of the concrete and the nominal cover which has been provided. जो भी nominal cover आपने प्रोवाइड कर रखा है। तो सिंपल सा इफेक्ट बताना था, पूरे नंबर आपको दे देगा मेरे ख्याल से। थ्योरी में तो इतनी प्यारी थ्योरी आई है कि खत्म भी नहीं होगी, मतलब नंबर काटने का कोई स्कोप ही नहीं बचता। इसमें भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। यू विल बी गेटिंग द कंप्लीट मार्क्स इन दिस। अब चौथे प्रॉब्लम का लास्ट पार्ट, चौथे प्रॉब्लम का लास्ट पार्ट भी देख लेते हैं। चौथे प्रॉब्लम का लास्ट पार्ट है हमारा स्ट्रक्चर का सवाल है। क्या है? Analyze the portal frame in the figure below by moment distribution method. The frame is fixed at A and D and has a rigid joint at B and C. ठीक है। Draw the bending moment diagram and sketch the deflected shape of the structure. So draw the bending moment diagram and sketch the deflected shape of the structure. पूरा bending moment diagram बनाओ और deflected shape of structure बनाओ। ठीक है, सिमेट्रिक है तो सिमेट्री यूज कर सकते हैं। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से एनालाइज करना है, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सॉल्यूशन, सो विल से एनालाइजिंग बाय moment distribution. So analyzing by moment distribution method using the concept of symmetry. तो हम concept of symmetry को यूज करेंगे। So using this concept of symmetry. तो ये हमने सिमेट्री का कंसेप्ट यूज किया, बीच में से मैंने इसको ब्रेक कर दिया जो हमारा फ्रेम दे रखा था। ये लोडिंग है, ये ए है, ये 3 मीटर है, कितना लोड दे रखा था 16 का, ये है 16 किलो न्यूटन मीटर की लोडिंग। ये पॉइंट है हमारा बी, इसको मैंने बोल दिया ई, और ऊपर वाला जो स्पैन था वो 4 मीटर, तो आधे में कितना हो जाएगा 2 मीटर। चलो स्टार्ट करते हैं, पहले निकालते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। सो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कौन सा जॉइंट है, एक ही जॉइंट है, मेंबर, फिर हमने लिखा स्टिफनेस, फिर हमने लिखा टोटल स्टिफनेस, फिर हमने लिखा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। बी मेंबर है हमारा बी ए और बी सी, सो मेंबर इज बी ए एंड बी सी, बी ए एंड बी सी। स्टिफनेस क्या है हमारी 4 EI by L, then BC 4 EI by L का आधा, देन टोटल वैल्यू है हमारी दोनों को जोड़ के 1.83 EI। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आया यहाँ पे 0.73, यहाँ पे आया 0.27, ये हमारे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर भी आ गए। अब फिक्स्ड मोमेंट निकाल लेते, तो निकाला अब फिक्स्ड मोमेंट्स। तो फिक्स्ड मोमेंट एट ए बी, फिक्स्ड मोमेंट एट बी ए, कोई लोडिंग नहीं थी ए बी और बी ए में, देखो भैया ए बी बी ए में कोई लोडिंग नहीं है, अंडा। देन फिक्स्ड मोमेंट एट बी सी, तो फिक्स्ड मोमेंट एट बी सी माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12 माइनस 16, एल कितना है 4, स्क्वायर बाय 12 माइनस 21.33 किलो न्यूटन मीटर। फिक्स्ड मोमेंट सी बी
WL square by 12, so 21.33 kilonewton meter. Fixed end moment CD, तो fixed end moment CD, fixed end moment CD, fixed end moment DC, जीरो, कोई लोडिंग नहीं है. अब मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं. So we'll go for moment distribution. So moment distribution किया. क्या मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन किया? जॉइंट है हमारे, देन जॉइंट पे मेंबर है हमारे, देन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की बात करेंगे, फिक्स्ड एंड मोमेंट की बात करेंगे, बैलेंस निकालेंगे और कैरी ओवर फैक्टर निकालेंगे. इसको ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ, यहीं पे सवाल खत्म करने की कोशिश करते हैं. देन हमारे जॉइंट कौन कौन से हैं? जॉइंट है ए, मेंबर है ए बी, बी मेंबर है बी ए और बी सी, और तो कुछ है ही नहीं. डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कुछ नहीं, 0.73, 0.27, 0, 0, minus 21.33, then what is to be done? मल्टीप्लाई किया, बैलेंस कितना बचा? व्हाट इज द बैलेंस हियर? 15.57. यहाँ पर कितना है? 5.76. कैरी ओवर ले लिया, आधा करो, 7.785. टोटल आ गया हमारा कितना? 7.785, 15.57 माइनस 15.57. खत्म सवाल. प्रॉब्लम इज फिनिश्ड. इसको इधर ले गया. इतना सिंपल सवाल था ये. डिफ्लेक्टेड शेप देखनी है, अगले पेज पे गए. अगर इसकी डिफ्लेक्टेड शेप बनानी है, वैसे तो परफेक्टली बनेगी नहीं, बट फिर भी सो दिस इज द डिफ्लेक्टेड शेप. जो मैं डॉटेड लाइन से बना रहा हूँ वो मेरी डिफ्लेक्टेड शेप है. दिस इज द डिफ्लेक्टेड शेप. ये हमारा डिफ्लेक्टेड शेप है. अब अगर मैं इसकी डिफ्लेक्टेड शेप बनाने के बाद फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम है. कितना आ रहा था? 15.57, 15.57, 15.57, 15.57. This was 7.785. कैरी ओवर क्या था? 7.785. बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लो. ये हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है. दिस इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. तो जितनी चीजें हो सकती थी वो सारी बता दी है. सिंपल सा सवाल था, ज्यादा परेशानी थी नहीं इसके अंदर. नथिंग ऑफ बिग इशू. तो सवाल देख के डरना नहीं है आपको. पेपर के अंदर आसानी से सॉल्व हो जाती है सारी चीजें. इजीली इट कैन बी सॉल्व. माइनस माइनस प्लस, 15.57, 15.57, 15.57. ये हमारी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है. 7.785, 7.785, 15.57.
ये जो हमारा टोटल ऑर्डिनेट है ये है WL² बाय 8। WL² बाय 8 मतलब 16, 4² बाय 8, 4 कटा 2 बचा 4, 32। तो जो बची हुई वैल्यू है वो भी निकाल सकते हो। इतनी सी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 32 में से घटा दो, 32 में से घटा दोगे ये आता है 16.43। ये हमारी बेंडिंग मोमेंट आएगा। तो दिस इज आवर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, चलो अगला सवाल करते हैं। विल डू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। थैंक यू एवरीवन।